और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे कोलकाता, जहां इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। वेल, सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं प्रदीप प्रज्वलन के साथ। तो मैं हमारे सारे डिग्नेटरीज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगी कि आगे आए दीप प्रज्वलित करने के लिए। शुभम मुख्यमंत्री जी और बाकी डिग्नेटरीज से निवेदन करूंगी कि विराजमान हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित कर और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं सर से निवेदन करूंगी कि श्री डीबी अग्रवाल, सीएमडी, श्याम मेटालिक्स का स्वागत किया जाए। अप नेक्स्ट श्री केशव बांगुर, चेयरमैन, DFL कॉर्पोरेशन। सर हमारे बीच नहीं है, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट श्री पवन कुमार रुइया, CMD, रुइया ग्रुप। श्री KB अग्रवाल, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर, प्रताप ग्रुप। श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल, ICC। श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन, FIO। श्री नीरज मनलोई, ACS2 HCM, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। Yes, Consul General, Thailand. Once again, Madam, a very warm welcome. Thank you, Shri Raghvendra Kumar Singh, for felicitating all our dignitaries on the dais. Requesting you to take your seat. Well, ladies and gentlemen, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश उद्योग एवं रोजगार वर्ष मना रहा है।
यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये काम सफलतापूर्वक हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। इसी भौगोलिक स्थिति तथा इतिहास अपार संभावनाओं को जन्म देता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ से पूरे भारत में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये पूरे देश के सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर है। कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, हीरा। Now, ladies and gentlemen, it's time for experience sharing by industry representative. मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर बीबी अग्रवाल, सीएमडी श्याम मेटालिक्स। सर, आप आए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। I, Brijbhushan Agarwal, Chairman, Managing Director, Shyam Metallic, and Senior Vice President, Indian Chamber of Commerce, is pleased to welcome Honorable CM, Madhya Pradesh, Shri Mohanji Yadav, for taking his valuable time to come to Calcutta and share his value and thought about the investment in Madhya Pradesh. The government of Madhya Pradesh has identified several key sectors like textiles, garments, food processing, steel, mining, gems, jewelry, tourism, automotive, and information technology. There is also a very potential growth on the renewable front. As we all know, Madhya Pradesh has a very good solar heat, and there is a lot of potential on the efficiency side from the solar industry, wind industry, and lot of investment is coming up in Madhya Pradesh. In mining and mineral also, Madhya Pradesh is a very, very lucrative state. We have an office over there, and I have personally evaluated. There is lot of opportunity in all the minerals. We beat iron ore, we beat manganese, bauxite, and lot of rare earth minerals available in Madhya Pradesh. Related to the agriculture also, with 4,000 crores proposal in the food processing and massive land bank of more than 1 lakh acre, the government aims to scale horticulture from 27 lakh hectare to 32 lakh hectare and boost the production from 400 to 500 million ton over 5 years. In information technology, electronic, also the state secured more than 26,000 crores in the tech sector commitment, generating a job of more than over 2 lakh crores. These are all the data what I have right now, and I would just like to share my experience. हमने 2 साल पहले एक सिक इंडस्ट्री लिया मध्य प्रदेश में from the NCLT, which was a loss making, and I tell you, in last 2 years, we doubled the production of that plant. We invested, we upgraded the plant, and today it is one of the most profitable venture of our group. The most beautiful thing, सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि काम वहाँ कैसे होता है. The system is so set, people are so active कि कोई भी कंसर्न होने से वहाँ पे जो भी हमारे प्लांट के लोग हैं, अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या कहीं पे भी wherever they go, I think they are so proactive that everything is taken very seriously. So I would request everybody to consider, with my experience, not on the stage but as an investor, we have invested a lot of money. More than 1,000 people are working, and we are also working on the new investment of more than 4,000 crores in Madhya Pradesh. Thank you so much.
Thank you so very much, sir, for sharing your experience with us. And now I would request Mr. Harsh Agarwal, Director, Pratap Group, to join us to the podium in order to share his experience. Very warm welcome, sir. Good afternoon, everyone. Madhya Pradesh is one of the most attractive destinations for business and industry in India. Strategically located at the heart of the country, it offers unmatched connectivity, abundant natural resources, and a skilled work investment. What truly sets Madhya Pradesh apart is its governance. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Mohan Yadav ji, the state has a remarkable transformation. Investor-friendly policies, ease of doing business reforms, and the creation of world-class infrastructure, such as industrial corridors and the PM Mitra Park, reflects its clear vision for growth and development. The proactive support of the government gives investors not just confidence, but also a sense of partnership in the state's progress. Madhya Pradesh today is not only a land of opportunities, but also a land of stability, trust, and sustainable growth. The Chief Minister's focus on industrial growth, job creation, and development has made the state a front runner in attracting both domestic and global investments. In an industry like mine, which is the textile sector, it is largely a labor-intensive industry. So Madhya Pradesh is not just an investment destination for us, it is a land of opportunity and growth. Thank you so much. Thank you so very much, sir. Up next, I would request Shri Pawan Kumar Roya, CMD Roya Group, to join us to the podium in order to share his experience. Very warm welcome, sir. Respected Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, esteemed members of the government, distinguished guests, industry colleagues, and my dear friends. It is an honor to be here today to be a part of investment opportunities in Madhya Pradesh, a state that is truly emerging as the nucleus of industrial growth and economic transformation of our nation. Dr. Yadav is one of the most educated and learned Chief Minister in India. He is very soft-spoken, focused, and has tirelessly worked to make Madhya Pradesh to a greater heights in terms of development, industrialization, and overall growth. I wish to congratulate him and the government of Madhya Pradesh for taking to its newer heights. It is his efforts that Madhya Pradesh is one of the most sought after location for major investments. This augurs well with the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where he has been vigorously supporting and promoting Make in India and Atmanirbhar Bharat. Today, India is the most sought after country for investments worldwide, and Dr. Mohan Yadav ji is channelizing them to come to Madhya Pradesh. The industrial landscape of Madhya Pradesh today stands as one of the most promising in the country. With its strategic geographical location, robust infrastructure, skilled workforce, and progressive policies, MP has become a natural magnet for investors and entrepreneurs who seek both opportunity and stability. The state's proactive initiative to promote manufacturing, logistics, and technology
driven industries are setting a benchmark for others to follow. Under the visionary and able leadership of Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Madhya Pradesh is not just witnessing development, it is experiencing a renaissance of industrial expansion. The government's forward-looking policies, ease of doing business initiatives, and commitment to creating a business-friendly ecosystem have given investors like us the confidence to dream big. It is with great pride that I announce today that Ruya Group will be significantly expanding its presence in Madhya Pradesh. And as a demonstration of our commitment, we are planning to make a considerable investment in Madhya Pradesh. It is a statement of our confidence in MP's growth story and a pledge to contribute meaningfully to its journey of transformation. For us, this is not just an investment. It's a long-term partnership with a state that shares our ambition to build, grow, and lead. Madhya Pradesh new industrial corridor and mega park are symbolic of a future that is innovative, sustainable, and globally competitive. We firmly believe that Madhya Pradesh is poised to become the center point of India's industrial revolution, a hub that will connect ideas, investments, and industries and accelerate India's vision of becoming a global economic powerhouse. I wish to express my deepest appreciation to the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, and his dynamic team for their tireless effort in shaping an environment where industry and innovation. Your leadership is great. तो उद्योग और व्यापार वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और अलग अलग राज्यों की राजधानियों में पहुंचकर कैसे मध्य प्रदेश में व्यापार और उद्योग को आकर्षित किया जाए, यही कोशिश है। तो मुख्यमंत्री ये बदलते दौर का समय और बदलते दौर के समय की कल्पना भी किसी ने की है तो वही बंगाल से ही हुई थी, और वो भी इतने निराशा के दौर में कभी कोई सोच नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 200 साल के आसपास उनने कल्पना कर ली कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये केवल कोई कर सकता तो बंगाल की माटी कर सकती है, ये काली मैया का आशीर्वाद हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता है। एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार के, सभी प्रकार के अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1923 में जो आईसीएस की टॉप एग्जाम पास करने के बाद भारत का गौरव दिलाते हैं कि हाँ, अंग्रेजों केवल आप ही बुद्धिमत्ता के मामले में दुनिया के सामने श्रेष्ठ नहीं हो, आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और एक तरफ पास भी करते हैं, दूसरी तरफ लात मार के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आइए हम सब अपने ज्ञान प्रतिभा का कौशल बताएं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करें। वो दौर आजादी की लड़ाई का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उस एग्जाम पास करने के बाद हमारे युवाओं का हिम्मत बढ़ाई, और उससे भी आगे बढ़ करके हम सब लगातार देखते जाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लगा करके हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके पहली बार राजनीतिक दल का रुख बनाते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अगर कोई बने हैं तो डॉक्टर मुखर्जी की नगरी भी यही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नगरी, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि के आधार पर बंगाल के विभाजन के समय से कष्ट को पहचान लिया कि बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उनकी भूमिका कितने प्रकार से हम देखते हैं। सबसे युवा कुलपति, और उस समय भी देश की आजादी के साथ उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए, एक अगर इंडस्ट्रियों की बात करें तो इंडस्ट्री मिनिस्टर तो थे वो हमारे बीच में, उनका अपना रोल, लेकिन उनने देश के विभाजन के साथ जो दूसरा कष्ट पहचाना कि एक विभाजन तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युग दृष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आजादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई
तो उसका विरोध उस समय भी किया और उस समय किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया था तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है तो वह धारा 370 है। 40,000 से ज्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी। वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई, वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूं, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहाँ दूर की कौड़ी है, कहाँ जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी तो इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहाँ जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते हैं, हाँ कहाँ अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हुए पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए
भारत तैयार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का इस माध्यम से, जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूं मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत, मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहां के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसीलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी। पानी की उपलब्धता के साथ आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 बहंदी थोड़ी बजा, सभी बजाओ तो आनंद आएगा। जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बात का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे ही हैं। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहां से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल करके एक दूसरी जाकर छिपरा निकल के जाती, गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूं। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियां, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीजें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया। लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को
और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूं, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे हों और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम बंगाल एंड ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग द पीपल ऑफ बंगाल टू मध्य प्रदेश. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए. हमारे प्रधानमंत्री के सपना विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही सराहनीय है. और मैं आपको इस बात मैं तेरे